Hello students, I hope all of you are fine. स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक स्कूल को डिसिप्लिन वे से चलाने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को एक सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ये रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 8 civics chapter 1. Students, in this chapter we will cover the following topic. First, introduction. Second, need of constitution in a country. Third, key features of Indian constitution. And in key features, the first one, introduction, and next, various key features of Indian constitution, and the last one, fundamental rights. Students, the first, introduction. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. It is a set of rules by which the government rules our country. It is the supreme law of the land. It came into effect on 26 January 1950. Our constitution is based on principle of democracy, socialism and secularism. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of Indian constitutions. स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें वही सब रूल हैं जिसके थ्रू कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही लैंड पे सुप्रीम लॉ माना गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इफ़ेक्ट में 26 जनवरी 1950 में लाया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस प्रीएम्बल. Preamble is the introductory statement of Constitution, which is first page of our Constitution. Now next, why does a country need a constitution? First, a constitution serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. Next, the constitution also defines the nature of country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by king and his council of ministers. The constitution often laid down rules that guard against this misuse of power by our political leaders. For example, in Indian constitution, many laws contained in the section of fundamental rights. Students, किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? सो फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प करता है कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट करने में
ताकि सभी पर्सन उसको एग्री हो सके कंट्री को गवर्न करने में। और कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ में पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर भी डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कंट्री को रूल किया जाता है किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स होते हैं वो गार्ड करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर्स होता है अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, उसके अगेंस्ट में लोगों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन, in a democracy, constitution also ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The constitution help to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so harsh that we need a strong dictator to set this right. However, in a long run, dictatorial rules will be not fit. स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कोई डोमिनेंट ग्रुप पावर का मिसयूज़ ना कर सके किसी भी लेस पावरफुल या कमज़ोर पर्सन के अगेंस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है अगर कोई गलत डिसीजन लिए जाते हैं उसका बैड इफेक्ट से बचाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी सेट किए गए हैं। सो आप देख सकते हैं हम सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, हर किसी को पार्टिसिपेशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर किसी को वोटिंग राइट मिलती है, हमें अपने राइट्स के लिए अपील करने का भी राइट मिला हुआ है। सो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। नेक्स्ट वन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन। The long experience of the oppressive rule under the colonial state, the convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. The Constituent Assembly was formed in 1946, which comprised of 300 members who met periodically for the next 3 years to write the India's constitution. The various things are kept in mind while drawing up constitution, as the country was made up of several different communities who spoke the different language, belonged to different religion and had distinct culture. Students, कॉलोनियल रूल्स के अंडर रहने के बाद ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि जब भी इंडिया फ्री होगा तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सभी को अलाउ किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स में, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशंस करने के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और जिसको बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे एंड एग्जैक्ट टाइम 2 years 11 month एंड 18 days। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे। बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख करके तब हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया हुआ है, लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स से, डिफरेंट कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और किसी भी तरह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
Now, some features of Indian constitutions. Students, फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. टिल देन, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.